Viewers, the violence in Nagpur was planned. Yes, the mob mayhem was carefully planned. The FIR in the Nagpur case has ripped apart the narrative of the lies spun by the so-called, defenders of peace, the self-appointed guardians of morality, who rushed to shield the rioters under the garb of victimhood. Viewers, the arrest of one Fahim Khan, the alleged mastermind, is not just a breakthrough in the case. It exposes the sinister ecosystem that was thriving on half-truths, selective outrage, and historical distortions. What's more chilling than the violence itself is the revelation that this mob was incited, organized, and unleashed with premeditated intent. You heard that right. It's all part of the FIR. It's not the anchor saying it. The mob targeted and molested women police officers. So a day after we told you how young IPS officer Nikta Kadam was attacked with an axe, now chilling details have emerged of how women police officers were molested, their clothes torn, touched inappropriately. The brave police officers who are the symbols of law and order, who stood in the line of fire, were not spared by this mob. And this was part of the plan. We'll get to that. I'll tell you what's in the FIR. This was not a spontaneous outburst of grievance, as the likes of Owaisi will tell you. This was a calculated assault to breach peace, to show the might of the mob. That is what it was. Viewers, the Maharashtra Chief Minister has said that there was no provocation. It demolishes the ecosystem propaganda peddled by the opposition. The likes of Owaisi and his ilk, who were quick to peddle their tired narrative of oppression, painting the rioters as victims, reacting to a provocation. And viewers, they did this while latching on to Aurangzeb as their icon and excuse. Now, Aurangzeb, viewers, can't be excused for this mindless mayhem. Love for Aurangzeb cannot be a license to burn cities or attack the police. Viewers, let's call this what it is: fakery of the highest order. The ecosystem drapes rioters with a fabric of victimhood and whispers tales of provocation that never existed, while ignoring the bloodied hands and a bloody trail. Viewers, the FIR paints a damning picture. Fahim Khan, a local leader with political ambitions, allegedly rallied a mob of hundreds, armed with weapons, and set them loose to unleash havoc. Stones were pelted, vehicles torched, and women officers were subjected to unspeakable indignities. And yet, this ecosystem dares to ask, but what provoked them? Viewers, the answer is nothing. Nothing but the lust for chaos and the arrogance of impunity. Viewers, this is not about Aurangzeb or his legacy. This is about a mindset that believes violence can be justified if the optics are right, if the narrative can be twisted just enough to cry victim. The opposition's haste to blame the state, to accuse it of failing to contain the violence in the mob, is a shameless deflection from the truth. The violence was planned, the mob was mobilized, and the target was clear. The ecosystem's fakery stands exposed, and we must name and shame them. I have the FIR copy with me. I'm holding the FIR copy, and it says, I'm reading just one sentence. अभी पुलिस को दिखाते हैं, इनको और किसी भी हिंदू को छोड़ने का नहीं, इन्होंने ही सारा खेल किया है. I have read verbatim what is written in the FIR. Sample the reactions, then we debate. आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही. हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो. कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही. त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून
अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे. सब चीज़ें चेक हो रही हैं, उसका क्या रोल था, वो किससे क्या क्या उसने भड़काने की कोशिश की, कैसे वो लोगों को मैसेज किए, या जहाँ भी उसके ओपन जो स्पीच हैं वो सारी हम लोग ये आप एक बात साफ है, जहां कहीं भी इस तरह का दंगा होगा भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ लेना चाहती है. भारतीय जनता पार्टी के ही सारे पर सब कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब नहीं है. See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Let's open this up. Pradeep Bhandari, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Harshvardhan Tripathi, senior journalist. Sujata Pandey, political analyst. Kishore Tiwari, leader of the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. Vivek Srivastav, Syed Asad Abbas and Ravi Srivastav. They complete this panel. किशोर तिवारी, आप लोगों ने तो, आपकी एक नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, काफी सीनियर है, राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला राइटर्स के लिए. उन्होंने बोला कि ये बीजेपी ने करवाया है. अब सब सामने आ रहा है. फहीम खान, देखिए ऐसा दिखता है फहीम, ये है अलेज्ड मास्टरमाइंड, और एफआईआर में बता रहे हैं कि क्या क्या कह रहा था ये अपने लोगों से. अभी पुलिस को दिखाते हैं, इनको और किसी भी हिंदू को छोड़ने का नहीं. ये एफआईआर में लिखा हुआ है सर. विवेक श्रीवास्तव को हंसी आ रही है, वो इसीलिए आते हैं डिबेट में कि कोई भी सवाल किसी से पूछो, वो एक अपने कोने में बैठ के हंसेंगे. देखिए प्रणेश, जो पुलिस अफसर से हुआ, जो लेडीज पुलिस कांस्टेबल से हुआ, ये घृणास्पद है. और नागपुर की अशांति और जिस प्रकार का दंगा हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है. और मैं नागपुर का हूं और नागपुर अभी बहुत ज्यादा विचलित है. और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे पूरे जिलों के अंदर उन्होंने जिला कार्यालय में जाके निवेदन दिए, उसी प्रकार 10 किलोमीटर दूर जाकर इन्होंने मुस्लिम एरिया में जाने का निवेदन एक पुलिस थाने में दिया. वहां सर, ये पर एक मिनट किशोर तिवारी जी, आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं निवेदन, ये निवेदन कर रहे हैं, वो कुल्हाड़ी लेके हाथ में निवेदन करते हैं क्या? ऐसे निवेदन होता है? पुलिस वालों को मारने से निवेदन होता है सर? अरे परेश, मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के निवेदन की बात कर रहा हूं. नहीं, मैं आपसे दूसरे तरफ की निवेदन की बात कर रहा हूं. वो तो उन्होंने दिन में तो कुछ वायलेंस नहीं हुआ. आप ये बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं, मेरा एक सीधा सवाल है. मेनी पीपल, व्यूअर्स हैव सेड दैट देयर वाज प्रोवोकेशन. व्हाट वाज द प्रोवोकेशन? व्हाट कैन बी द प्रोवोकेशन बिग इनफ टू जस्टिफाई अटैक ऑन द पुलिस? ये बताइए, सीधा सवाल है. नहीं, पुलिस पे के अटैक का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. तो बस हो गया. वहां पर ऐसी अभी आप जस्टिफिकेशन सुनिए. अभी आपने कहा है नहीं है, अभी आप जस्टिफिकेशन सुनिए. विवेक श्रीवास्तव, पुलिस पे अटैक का क्या जस्टिफिकेशन है? जी देखिए, जो पुलिस के साथ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था. लेकिन जनता को जब आप भड़काएंगे, जब आप उल्टी सीधी खबरें सुनाएंगे, जब आप खड़े होकर के बोलेंगे ये रही एफआईआर की कॉपी और ये वो लड़का है, इसने सब कुछ किया है. कौन सी एफआईआर, कब हुई, प्रेशर में रिकॉर्ड हुई, नहीं हुई, कोर्ट में पेश हुई, क्या कोर्ट ने उसको गिल्टी बोला, नहीं बोला, उससे आपका कोई मतलब नहीं है. आप एक तरफा आपने मुसलमानों को बोल दिया साहब ये सब आए थे और ये सब गलत है. ये विक्टिम थे ही नहीं, किसी ने इंस्टिगेट किया ही नहीं. किशोर तिवारी जी, हिंदू परिषद आपके बगल में बैठे हुए हैं वो, आपने कहा जस्टिफिकेशन नहीं है. देखिए जस्टिफिकेशन, पुलिस में जाना, कंप्लेंट लिखवाना, कोर्ट में अपील करना, यह प्रोवोकेटिव है विवेक श्रीवास्तव के लिए. और ये हर रोज बोलते हैं डिबेट में नेशनल टीवी पे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं जानते, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. हाउ शेमलेस कैन राइट अपॉलॉजीज बी? विवेक श्रीवास्तव इज अ सिंबल ऑफ राइट अपॉलॉजी गैंग, mascot, not just an ordinary symbol. Ravi Srivastava,
if an aggrieved person goes to the police or that person approaches court, will you call it provocative and then unleash violence of this scale on the streets? See, Pranesh, both the parties have filed a FIR. Both sides people were arrested. Some mastermind picture you are showing on the right side of the screen. And I have read just now that the Bajrang Dal VHP people have already got the bail. So some kind of, what you call is that partiality or discrimination is happening. But the fact is, if somebody has attacked police, he must be punished. Somebody is a writer, he must be punished. Okay. But it should happen after the court proves them Now, sir, guilty now and you tell me convict them. who grants Otherwise- bail? The magistrate grants bail. No. In the past, we've seen opposition leaders questioning the court order. Some have even gone on to say that lower courts will set the country on fire. Is this your version of faith in Samvidhan? If you are not believing court, then it's up to you. Then you don't believe in constitution. You But have who to are these believe the people? court. This is the ecosystem I am that you saying represent. That What you is have the- to believe the court. Okay, let me break Who it else? down, सर. मैं आसान कर देता हूं आपके लिए. पुलिस आप ये का- बताइए, अभी विवेक श्रीवास्तव से मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ, अगर आप गलत खबरें दिखाएंगे, अगर आप औरंगजेब की बात करेंगे, अगर आप उन पे फिल्म बनाएंगे, तो ये होगा. ये विवेक श्रीवास्तव ने कहा, वो फिर से बोल देंगे. आप बताइए, क्या प्रोवोकेशन था जो पुलिस वालों पे अटैक हुआ? पत्थर चले, गाड़ियां जली. Said it. He's irrelevant. Don't discuss about Aurangzeb now. It's over. Where is Aurangzeb now? Or his bazaar, for that matter? I'll It's tell a you where is protected- Aurangzeb. It's a protected site, sir. औरंगजेब By the नहीं सर, मैं बता रहा हूं, औरंगजेब इज इन इंडिविजुअल्स लाइक इज इनसाइड इंडिविजुअल्स लाइक विवेक श्रीवास्तव. देखिए वो कैसे कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. उनको पता है वो म्यूट है, लेकिन वो फिर भी ऐसे कर रहे हैं. ही जस्ट वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट अटेंशन. उनको पता है अभी वो उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वो फिर भी वो हाथ ऐसे उठा रहे हैं. अब वो हंसेंगे थोड़ी देर में. देखिए कैसे कर रहे हैं हाथ. ऐसे लोगों का, बिफोर आई ब्रिंग इन मिस्टर भंडारी, हर्षवर्धन जी, ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो हर चीज में जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं. आप बोल रहे हैं कि हमने देखिए पुलिस को अटैक कर दिया, कुल्हाड़ी से मार दिया क्योंकि आपने गलत खबर चलाई, क्योंकि फिल्म बना दी उस पे. मुझे नहीं लगता कि प्रणय जी ये किसी चैनल के देखने से या किसी उससे लोग कुल्हाड़ी लेकर या किसी पुलिस के अधिकारी के ऊपर हमला कर देंगे, किसी महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करेंगे. ये जब आपके मन में उस तरह की भावना होगी, जब आप उतना नीचे गिर के सोचते हैं, तभी ये सब कर सकते हैं. और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें कई बार लगता है ना, हमें भी बड़ी चिंता होती है कि आज औरंगजेब पर बात करनी पड़ रही है. क्यों बात करनी चाहिए उस पर? बात इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि उसकी एक कब्र है, जिस कब्र पर जाने अनजाने कुछ लोग अचानक निकलते हैं, कुछ जानकर निकलते हैं, कुछ अनजाने में भी चढ़ा आते होंगे, फूल चढ़ा आते हैं. फिर अबू आजमी जैसे लोग हैं जो बिना किसी वजह के, विदाउट एनी प्रोवोकेशन, क्या कहते हैं, औरंगजेब महान शासक था. उसकी जरूरत थी क्या? सब लोग भूल गए इतनी जल्दी. सबको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का वो प्रदर्शन याद है, मांग याद है, डिमांड याद है कि ये कब्र हटाओ. लेकिन किसी को याद नहीं है कि बिना किसी वजह के, अब अगर भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश यादव और अबू आजमी इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उनके कहने से सब कुछ करते हैं, तब तो मान लें. खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था ना कि अखिलेश यादव को, अबू आजमी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए. सवाल यहां यह है कि औरंगजेब किसके मन मस्तिष्क में अभी भी है? किसके दिल में औरंगजेब बसा हुआ है? वो क्रूर, वो राक्षस किसके दिल में बसा हुआ है, जिसने हिंदुओं को नहीं छोड़ा, मंदिरों को नहीं छोड़ा, मुसलमानों को नहीं छोड़ा, अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ा, साहिबजादों को नहीं छोड़ा? किसके दिल में बसा है? और जो नागपुर में हुआ वो चिंता की बात है, क्योंकि किशोर जी वरिष्ठ हैं और वहीं नागपुर से ही हैं, ये तो जानते हैं. वहां ये घटना होना सचमुच बड़ी चिंता की बात है. और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को हर एक जो आतताई है, ये दंगा करने जो निकले वो आतताई के अलावा और कुछ नहीं.
उसके खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि बरसों बरस लोग याद रखें, सबक रहे। नहीं, ये कैसे हर्षवर्धन जी उठा देखिए, सकते? ये तो मैं कोई भी जो राइट थिंकिंग इंडिविजुअल है वो ये बोलेगा कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्होंने दंगा किया, जो दंगा का समर्थन कर रहे हैं, असादुद्दीन ओवैसी जिन्होंने बोला कि ये एक्शन रिएक्शन है, विवेक श्रीवास्तव, ये इन जैसे लोगों का क्या करें? बिना प्रोवोकेशन के लोगों के घर में पत्थर बरसाए गए हैं, पुलिस वालों के ऊपर जो हमला कर दे उसके बारे में आप सोच सकते हैं क्या सोच उसके दिमाग में होगी? और उसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? आप सरकार पर आरोप लगाइए, सरकार पर सवाल खड़ा कीजिए कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई। ये तो ठीक है, यहां हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, और आप दंगाइयों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये अभी पूछते हैं उनसे, जो दंगाइयों के साथ खड़े हैं उनसे पूछते हैं। विवेक श्रीवास्तव सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, 5 पॉइंट्स बता दीजिए, बस 5 पॉइंट्स बताइए, 5 प्रोवोकेशंस जिस वजह से ये दंगा हुआ। जी देखिए, पहली चीज गलत तरह की पिक्चरें, और दूसरी प्रमुख चीज जो मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, एक तरफा आप लोग एफआईआर हो गई और ये फोटो उस मुसलमान की है, उकसाया नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, विश्व हिंदू परिषद वहां पहुंचा था, बजरंग दल का कैडर वहां पे था, इन्होंने भी जाकर के वहां पे हल्ला मचाया, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करी। इनके कितने नेताओं पे एफआईआर हुई है? कितने विश्व हिंदू परिषद के लोग जो वहां पर थे उनके खिलाफ एफआईआर है? मुझे कोई बताएगा? नहीं है किसी के खिलाफ। जब स्थिति खराब हो गई, जब रिएक्शंस हुए, तब आप सोकर के उठे और रिएक्शन पोस्टर बॉय विवेक श्रीवास्तव इज बैक व्यूअर्स। द रीजन वी हैव विवेक श्रीवास्तव 3 days in a week, I know most of you don't like him, but the reason I have him on the show is only to tell you that see how this ecosystem thrives on half truths. प्रदीप भंडारी, आंसर इस क्वेश्चन। आपने गलत तरह की पिक्चर दिखाई, एक तरफा एफआईआर, और वो बोल रहे हैं टू स्ट्राइक बैलेंस यू शुड हैव बुक्ड पीपल फ्रॉम बजरंग दल एंड वीएचपी, क्योंकि इधर मॉब के खिलाफ एफआईआर हुई तो उनका भी नाम डाल देते ताकि वो बैलेंस लगे। Pranesh, I believe that I will answer that, but I believe that all of us on the panel are secular individuals, and all of us on the panel believe that any writer should be named and shamed. I openly challenge on your show, Pranesh, to my friends, in particular Mr. Vivek Srivastava and Kishore Tiwari. This is the copy of the FIR. 2 wrongs do not make a right. I will name the writer and say that this is the name of the writer. Can Vivek Srivastava do so? Yasin Sheikh Mohammad Sharif is a writer. Can Vivek Srivastava call him a writer? Sheikh Fayaz Sheikh Firoz is a writer. Can Vivek Srivastava call him a writer? Mohammad Juban Razak is a writer. Can Vivek Srivastava call him a writer? Shamim Khan, who is a writer, who's a key conspirator, can Vivek Srivastava call him a writer? No, he cannot call him a writer. Now let's take the argument of provocation. This is the tweet of Shamim Khan. This is 2 years back, where he has insulted our shivling. If your camera person zooms, you will see that the way Asaduddin Owaisi and individuals from Trinamool Congress during the case of Gyan Vapi had insulted our shivling. This is exactly how this man, this writer, has insulted our shivling. Did you see any Hindu picking up stones? Did you see any Hindu coming out and attacking them? Did you see any Hindu taking swords in his hand? Did you see any Hindu taking out arson? No, let's put it to Vivek Srivastava. You want him to answer? I believe that was the excessive provocation. Let's put him to test. विवेक श्रीवास्तव, मैं भी एक सवाल जोड़ देता हूं। नंबर 1 सर, 1 मिनट, सवाल तो सुनिए, 1 मिनट। उन्होंने 3-4 पूछे, मैं एक साथ बता देता हूं। It'll be easier for you to answer. Is Javed Akhtar a writer? जी, किस जावेद अख्तर की बात कर रहे हैं आप? हम तो एक जावेद अख्तर द पोएट को जानते हैं। राइटर भी तो है, लिरिसिस्ट भी तो है। बात कर रहे हैं, उसका पता बताइए। राइटर लिरिसिस्ट है, ये डब्ल्यू से राइटर हैं, आर वाले नहीं है ये। आप मुझे ये आप मुझे एक बात बाकी लोगों का बताइए। आप चलिए, हो गए या प्रदीप भंडारी हो गए, आप लोग कोर्ट हैं? नहीं, आर यू अ कोर्ट? आर यू द कोर्ट? आर यू द कोर्ट? और इस प्रदीप भंडारी द कोर्ट? हैज अ वर्डिक्ट बीन गिवन? हैज द केस बीन फॉट? आप खड़े होकर के 5 लोगों पे आप कह कैसे रही हैं कि वो राइटर्स हैं? आप कौन है और आपकी क्या हैसियत है? पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, कोर्ट उस पर निर्णय लेगा, वकील केस लड़ेंगे, तब निर्णय होता है राइटर कौन है कौन नहीं है। कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद केस में क्या कहा है? फिर आप लोग प्रोवोकेशन क्यों बोलते हैं? जो कहा है वो पालन हुआ है ना, सबने पालन किया है।
क्या इस बोला देश का था मुसलमान असादुद्दीन पालन ओवैसी किया ने, है। क्या बोला था बाबरी वर्डिक्ट को? विवेक श्रीवास्तव बताइए, आपके बहुत बड़े दोस्त हैं वो। अरे बाबा, क्या बोला था ओवैसी- बताइए आप। ओवैसी एक नहीं, बहुत नेता मान है। सम्मान है आपके मन में कोर्ट का। आप- यू नो यू रेस्पेक्ट द जुडिशरी सो मच। टेल द व्यूअर्स व्हाट डिड ओवैसी से आफ्टर द बाबरी वर्डिक्ट, बताइए। आप बताइए ना सर, आपने क्यों दंगाई बोल दिया? आप देखिए, यही है नहीं, नहीं, आपका I want to आपका ask you रेस्पेक्ट why- बाहर आ गया ना। ये लोग दंगाई हैं। It takes 30 seconds, Vivek Srivastava, to expose you. नहीं, respect Sir, की at बात नहीं है। least, Respect की sir, बात है you ही know, नहीं। मैं Respect देखिए, की बात- if you want to do this smartly, sir, you know, make it difficult for us. कि एक्सपोज करने में थोड़ा 5 मिनट लगे या पूरा शो निकल जाए, किसी शो में नहीं हो आप लोग, क्यों ऐसे करते हैं आप? सैयद अब्बास इज एम्बैरेस्ड बाय योर रिस्पॉन्स। उनको हंसी आ रही है लेकिन रोका हुआ है उन्होंने। But you know, Mr. Abbas, before I come to you, Sujata Pandey, when you hear people like Owaisi and Owaisi fans, Vivek Srivastava or Aurangzeb fans, क्या चलता है आपके मन में? How do you see this? So I think, you know, when you see all this, Pranesh, you feel the system is rotten. Rotten with the appeasement so much कि they can blame the government, they can blame the law and order situation, they can blame the police, okay, but they can't blame the Reuters. Go to Sambal also, same thing. They blame the administration, they blame the ASI, they blame the Chief Minister of Uttar Pradesh, but they don't blame the writer. They stand with the writer. And this is not the first time that any riot that takes place, any Sartan se juda that happens, they stand with the perpetrators, not with the victim. They did not stand with Kanhaiya Lal. They did not stand with Umesh Kole. And today also they are not standing with either the policemen or the innocent Hindus. Those were targeted. They are not even standing with the woman who was probably the entire mob tried to rape her. They did not stand with the administration. They are not standing with the country today who wants the peace. Probably, Pranesh, I think there are two things here. One, Nagpur attack has a symbolic, importance. Nagpur is the headquarters of RSS, and by attacking planning this entire thing in Nagpur, they wanted to send a message that probably the same message that they wanted to send in the Delhi riots when Trump was coming. Here the same Here message. the FIR is saying it. Now Vivek Srivastava will say FIR में तो कुछ भी लिख सकते हैं. अभी पुलिस को दिखाते हैं. क्या दिखाएंगे पुलिस को? ओवैसी के भाई ने क्या कहा था? पुलिस हटा लीजिए. You know, Mr. Abbas, मैं आ रहा हूं सर. विवेक श्रीवास्तव सर आ रहा हूं. विवेक सर, I am just coming to you. Let the others in your team speak. एक मिनट. वो सैयद असद अब्बास अभी बोले नहीं है सर. 1 minute. He's a nice guy. 1 minute. Mr. Abbas, you know, you are a reasonable man. On many occasions, you know, you've broken ranks, taken the right stand. Now I am asking you a question based on logic of Vivek Srivastava. It's an important question. इन्होंने कहा कुछ ऐसी पिक्चरें दिखाई. He is, you know, referring to the film छावा, कि उसके वजह से लोग भड़क गए. By this logic, जब उरी रिलीज हुई थी, जिसमें वो डायलॉग है हाउस द जोश, all these people who are part of the mob should be lining up to join the army. गए ये आर्मी ज्वाइन करने? नहीं गए ना. जब बॉर्डर फिल्म आई थी, ये चले गए क्या बॉर्डर? इनको जाना चाहिए था बॉर्डर, नहीं गए ये. लेकिन और भी 2-3 फिल्म है, अभी एग्जांपल दूंगा तो विवेक श्रीवास्तव को बुरा लगेगा. अब मुझे खुद हंसी आ रही है पूछ रहे में, बट यू नो वन हैज टू आस्क इट बिकॉज विवेक श्रीवास्तव बोलते हैं ऐसा. ही बिलीव्स इन इट. Pranesh Saab, firstly, you know, the previous panelist, Sujata Pandey ji raised a point, ma'am. I'm not saying this because you're asking me to. 2 hours back, I was on a previous channel on national television and I made the point, especially mentioned the woman police officer, DCP Kadam. What happened with them is absolutely wrong. I've served very closely with the Karnataka police, been associated with them, and I know the sacrificial duty that they do. And let me also tell you, no matter what the mob is, whichever religion it is, unequivocally, unconditionally, everyone who writes, I condemn them. This is absolutely not good. Now, to Mr. Pradeep Bhandari, No, 1 minute, sir, 1 minute. Syed Asad Abbas, I am asking you a direct question. Just answer the question. What is this provocation logic? That you are justifying violence with an excuse which has been exposed. There was no provocation. Violence
if there is provocation or no provocation, violence is absolutely not justified in clear Say that terms, once is more. my Vivek Srivastava, point. can we have Vivek Srivastava on the screen? Can I complete my point? Pranesh, you're a reasonable Vivek answer. Srivastava, listen to Syed Asad Abbas. Mr. Abbas, repeat what you said, please. 30 I am seconds, requesting sir, you. please. Just repeat the Yes, last I line will- you said. I will definitely repeat. Allow me 1 minute time, Pranesh Sahab, just 1 minute time. The fact of the matter is, but my request here, you're a millennial anchor who's ruling the roost on TRPs. I'm a millennial. No, 1 youth, minute. But one Sir, message. this is not, one message no, this is to nothing to BJP. do One with, message, you know, one with message, age. No, one or the message. year one was born. This is putting facts first. The fact is, all the political parties and leaders need to take a leaf out of Sunil Ambekar ji, RSS Pramukh Pracharak's book, saying that Aurangzeb is not relevant today. Aurangzeb is not important today. Who is important, my friend? BJP, please listen. Go Jobs, say this farmer to issues, who's making unemployment, Aurangzeb relevant. Abu hospitals, Azmi. facilities. Will you say this to Akhilesh Yadav? Will you say this to Owaisi, who sends his younger brother to pray at his grave? Will you say that to Owaisi? You will not. Now Vivek Srivastava, answer my question. बॉर्डर फिल्म देखने से आप गए थे बॉर्डर पे? हाँ, मैंने बहुत सारे लोग भाई जो बहुत से युवाओं ने जो ज्वाइन किया होगा. बड़ा अच्छी पिक्चर थी, बनाइए, अच्छी पिक्चर है, देश के लिए बनाइए ना. आप गलत हिस्ट्री दिखाते हैं सर. प्रॉब्लम यहां पर है. शिवाजी के साथ औरंगजेब की तरफ से कौन लड़ता था? राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, राजपूत लड़ते थे. शिवाजी की तरफ से कौन लड़ता था? मुस्लिम सिपाही सालार. अच्छा, ये फहीम खान किसके तरफ से लड़ रहा था? ये फहीम खान किसके तरफ? हाँ, आप सुनिए. नहीं सुनिए सर, मुझे ये बताइए फहीम खान किसके तरफ से लड़ रहा था? और ये जो लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, 1 मिनट, विवेक श्रीवास्तव, फहीम खान किसके तरफ से लड़ रहा था? जी, औरंगजेब के तरफ से, ओवैसी के तरफ से? जी, फहीम खान जी नहीं. आपने जनता को बरगला करके लड़वाया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान. देश में जो कम्युनल हार्मोनी है डिस्टर्ब करवाया है सर. हिस्टोरिकली गलत पिक्चरें दिखा सर, 1 मिनट. और ये people like you are complicit in make. No, 1 minute. People like you, Vivek Srivastava, and I'm saying it with all responsibility. People like you have made a mockery of, this communal harmony. उसका हारमोनियम बना दिया आप लोगों ने. हर रोज विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, हर रोज. ये एक्शन हुआ, ये हमारा रिएक्शन था, ये प्रोवोकेशन था. यू आर नाउ ब्लेमिंग अ फिल्म टू डिफेंड दिस मॉब. प्रदीप भंडारी. Pranesh, let's be very clear. It was a targeted anti-Hindu riot. If they believe this was a provocation, what happened in Mau when the Indian cricket team won the Champions Trophy and individuals were celebrating it outside a Jama Masjid? What was the provocation then? Or what was the provocation in 1964 Calcutta riots where the Bharatiya Janata Party was not even born? Or what was the provocation in 1851, 57, 57, 74 anti-Parsi riots? It's the pattern is same. What was the provocation in anti-Hindu Delhi riots when an IB officer Ankit Sharma was killed? Every time they make the accused the victim. The truth is that it's a pattern, and the pattern is going pre-independence, and the pattern is continuing here. They will have some or the other shield, but people like Vivek Srivastava give them a political cover. This is more than just pattern. And this is the exact thinking which is followed in Pakistan. हर्षवर्धन जी, सुजाता पांडे, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट 1 मिनट. हर्षवर्धन जी, असादुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था. वो बयान कोई भी अगर गूगल करेगा तो मिल जाएगा. कल या परसों का बयान है, कल का ही बयान है शायद. उन्होंने कहा था, देखिए ऐसी ऐसी चीजें हुई, इसके वजह से लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने ये किया. आज मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ओवैसी जी जो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ था. लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहस हम लोग कहां ले जाना चाह रहे हैं. देश आगे बढ़ना चाह रहा है. कुछ लोग औरंगजेब पर अटके हुए हैं. और क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि उसकी कब्र पर कुछ लोग जाते हैं. औरंगजेब जैसे व्यक्ति की कब्र क्यों होनी चाहिए? मूल सवाल पर आइए प्रणय जी. मुझे लगता है कि ये जब इस पर आएंगे, अब ये कहा जा सकता है किसी की कब्र क्यों हटाएंगे? इसलिए हटाएंगे क्योंकि देश के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सौहार्द रहना चाहिए. इसलिए हटाएंगे क्योंकि ये कतई ठीक नहीं है कि उसकी वजह से हर दूसरे चौथे देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुसलमान सड़कों पर एक दूसरे के सामने खड़ा रहे. और कमाल की बात यह है कि कहीं पर हिंदू जाकर किसी मुसलमान बस्ती में कोई दंगा करने जा रहा है क्या? क्यों ये सब कुछ हुआ? विश्व हिंदू
परिषद और बजरंग दल के लोगों पर धरना प्रदर्शन के लिए, प्रतीकात्मक कब्र जलाने के लिए एफआईआर हुई, वो लोग गिरफ्तार होते हैं, सरेंडर करते हैं, जानकारी नहीं, विवेक श्रीवास्तव कहते हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, वो सरेंडर करते हैं। सवाल यह कि दूसरे कौन लोग थे जो तैयारी करके दंगा करते हैं? ये फहीम खान रवि एक दिख श्रीवास्तव रहा है। आंसर दैट क्वेश्चन। Government is incompetent. They are shamelessly incompetent. Why did it not know that there's going to be violence? Were they sleeping or were they in connivance with those people? You have to respond me. ये क्या करते हैं? वो औरंगजेब की कब्र है, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है सरकार का, एएसआई का मॉन्यूमेंट है वो। सर एक बात बताइए, एक मिनट रवि श्रीवास्तव, आपको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे इतना गुस्सा आ रहा है और इतनी फिट है आपको। पुलिस क्या है सर? पुलिस सिंबल ऑफ द स्टेट है, प्रोटेक्टेड है, यूनिफॉर्म पहनती है, उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? भीड़ ने कुल्हाड़ी से मार दिया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉब ने बदतमीजी की महिला पुलिस कर्मियों के साथ, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? So, sir, first, I'll say two things. Whenever such incidents happen, Pranesh, two things come into picture. One, they'll talk about provocation. Provocation क्या होता है? हमारे रामचरितमानस को जलाया गया, राम को नकारा गया, देवी देवता पे भद्दी टिप्पणी की गई, शिवलिंग को फवारा बोला गया. No provocation happened, and only in this community provocation happened. There are no provocation for Parsis. There's no provocation that happens for Christians. We have to ask the big question. We have to address the elephant in the room today or somewhere, but we have to. Secondly, what is this Muslim area? Are we in India have demarcated geographically or demographically that this is a Muslim area and this is a Hindu area? Whatever, if any possession of any religious celebration is happening, there are no demarcations. So do not come with this fake claims of just to protect the entire writers. And this is a blatant effort, I would say the most shameless effort to protect the writers by saying कि provocate किया गया, by saying कि वो sensitive area में राइटर्स पे फिर से पूछ लेता हूं जाते जाते, बिफोर वी शिफ्ट आवर अटेंशन, विवेक श्रीवास्तव, जावेद अख्तर राइटर हैं कि नहीं है? जी, पहले आप बताइए, आपने उस हिंदू की फोटो क्यों नहीं दिखाई और उसका एफआईआर क्यों नहीं दिखाया, जिसके बारे में हर्षवर्धन त्रिपाठी बात कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है? आपने ये क्यों नहीं दिखाया सर? सरेंडर कर दिया सर लोगों ने, आपको बोल दिया हर्षवर्धन जी ने एफआईआर पढ़ लीजिए। हाँ, तो वो एफआईआर हुई ना, एफआईआर हुई। अरे तो सरेंडर कर दिया तो हिंदू सड़क पे आ गए क्या? सर एक बात बताइए, इफ आई एम बुक्ड बाय द पुलिस, नो 1 मिनट, इफ आई एम बुक्ड बाय द पुलिस, विवेक श्रीवास्तव, शुड आई सरेंडर, फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, और स्टार्ट अटैकिंग पुलिसमैन विद एक्ट्स? अरे बाबा, एफआईआर हुई ना, उसने प्रदर्शन किया, गलत किया, एफआईआर हुई, एफआईआर हुई, जस्ट टेल्स यू हाउ द इवन एंडेड द स्टेट हैज बीन। ये आप अपने आप को क्यों एक्सपोज कर रहे सर? हमने कोई कमी रखी थी क्या? आप खुद ही अपने आप को कर रहे हैं एक्सपोज। फोटो, आप सिर्फ मुसलमानों की फोटो दिखाना पसंद करते हैं, ये प्रॉब्लम ये है। ये फहीम खान अलेज मास्टरमाइंड है या ये सिर्फ इनको आप फेथ से जानेंगे? एक एफआईआर दिखा दिया, बोला साहब ये सारे गिल्टी हो गए। नहीं तो अगर फहीम खान, सर एक बात बताइए, अगर पुलिस बोल रही है फहीम खान मास्टरमाइंड है, तो हम इसके जगह किसका फोटो चला दें? किसी का, सुनील का चला दें, बताइए, अमित का चला दें, आप या विवेक का चला दें, आप बताइए। ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं। विवेक श्रीवास्तव, यू नो 1 मिनट सर, सॉरी, देखिए ऊपर नीचे डिबेट में होती है, आप इसमें तैयारी कमी थी, अब आप कल आइएगा, फिर से मौका दूंगा मैं आपको। I will not get tired of the illogical comments that you make. Let's move on, viewers.